अजीज दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, लंदन में इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। अगले 4 साल के लिए सादिक खान फिर से हमारे सर पे थोपे गए हैं और हमें अब ये सादिक खान को मज़ीद 4 साल भुगतना है। अजीज दोस्तों, लंदन के इलेक्शन पे आता हूँ। पहले 2 खबरें आपके सामने रखूँ। ये इराकी टिकटॉकर है ओम फहद, उसको बगदाद में इसके घर के सामने मार दिया सिर्फ इसलिए कि ये टिकटॉक वीडियो क्यों बनाती है। दुनिया भर में सारे फसाद की जड़ ये कल्ट है जिसका नाम इस्लाम है। अजीज दोस्तों, अभी एक सर्वे हुआ जिसमें पूछा गया कि आपका देश सही रास्ते पे जा रहा है कि गलत जा रहा है, सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। उस सर्वे में दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने कहा कि सही डायरेक्शन में है वो भारत है। 77% इंडियंस ने कहा कि हमारा देश सही डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ 23% ने कहा कि नहीं जा रहा। अब की बार 400 पक्की। सिंगापुर दूसरे नंबर पे 72% ने हाँ कहा, इंडोनेशिया ने 72% ने कहा। इस सिलसिले में जो नीचे की लाइनों में है ना, सारे वेस्ट के कंट्रीज़ हैं। फ्रांस के लोगों ने कहा 82% के हमारा देश सही रास्ते पे नहीं जा रहा। इंग्लैंड 79% ने कहा कि गलत जा रहा है। नेदरलैंड 73%, जर्मनी 72%, स्वीडन 71%, कनाडा 70%, बेल्जियम 69%, इस तरह अमेरिका 65% लोगों ने कहा कि हमारा कंट्री गलत रास्ते पे जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड का इलेक्शन, इंग्लैंड में जो म्यूनसिपल इलेक्शन चल रहे थे उसमें सादिक खान ने टोटल मुस्लिम कार्ड खेला और टोटल मुस्लिम अपीजमेंट पे लंदन में जो आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से प्रोटेस्टर्स ने हाईजैक किया हुआ है लंदन को, उसमें पुलिस को बिल्कुल ही हल्का हाथ रखने का कहा है। लेकिन वो जो इन प्रोटेस्टर्स या हमास के टेररिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, यहूदी या जो कुछ, तो उनको सख्ती से गिरफ्तार किया जाता है, रोका जाता है, मारा जाता है। अजीज़ दोस्तों, मैं आपके सामने जो वीडियोस बनाता हूँ, मेरे सिक्योरिटी के मसले हुए तो मैंने भी कांटेक्ट किया, तो मुझे ये मशवरा दिया गया कि वाई आर यू पुटिंग योर फैमिली इन डेंजर, वाई आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग्स। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं ना बोलूँ, और अगर बोलूँ तो नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोलूँ, मुसलमानों की सपोर्ट करूँ और ये सब करूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। My manifesto is to help improve the lives of Muslim. I know many Londoners who are Muslim suffer real challenges in relation to not having their potential fulfilled because they're going hungry at school. Their parents are stressed and they're skipping meals because they're worried about how their kids are going to eat. So if I'm re-elected, I will make my groundbreaking policy of free school meals permanent, which will really make a difference. A family with one child will save £500 a year. The second big thing I know that many Londoners who are Muslim face is their children not fulfilling their potential. Often they're underemployed or in jobs that they could do better jobs, but they haven't got the skills. And low income or not working will get free training to get the skills for jobs that are created in London. Really important in this great city. The other big issue facing Londoners, particularly Londoners of Islamic faith, is the issue of housing. And so we need to build far more homes in our city because often people from minority communities want to live near a mosque, near halal food, near places where there are other people like them. So they, for a variety of obvious reasons, and they're priced out because there's not enough housing. So we're going to build at least 40,000 council homes, at least 6,000 rent control homes. And the final thing to say in relation to Londoners who are Muslim is look. One of our strengths is our diversity. It's something I'm really proud of. I've organised, since I've been there, events like Eid on the Square, Ramadan nights and so forth. Why is that important? It gives a sense of belonging. Look, that's why we've got to be vigilant and we've got to work really hard to be friends of our neighbours, provide allyship.
And one of the things I'm really proud of is how Muslims working together to support asylum seekers, have more housing in London. And that's the sort of teamwork I want to see in our city. Well, I'm somebody who was a member of Parliament for 11 years and been there for 8 years, and I've met too many victims of crime. सादिक खान के इस लंदन में हम लंदनिस्तान में रह रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि सादिक खान किस तरह मुसलमानों को अपीस कर रहा है। यही अगर कोई क्रिश्चियन आदमी बोलता है ना तो उसके खिलाफ इस्लामोफोबिया के फ़ौरन वो लग जाते हैं फतवे। अज़ीज़ दोस्तों, सादिक खान ने ये आपके सामने जो नक्शा है, ये लाल कलर है, ये लंदन के मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो सेंट्रल लंदन और ये सब इलाकों में लेबर जीती है और ब्लू है वो कंजर्वेटिव है। 1,88,000 वोट लिए हैं सादिक खान ने, 8 लाख और कुछ कंजर्वेटिव ने लिए हैं, बाकी 1 लाख लिबरल डेमोक्रेट और इस तरह के सब ने थोड़े थोड़े वोट लिए हैं। अगर सबका मिला के देखा जाए ना तो 43% वोट सादिक खान को मिला है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि लंदन का मेयर मुसलमान, बर्मिंघम, लीड्स, ब्लैकबर्न, शेफील्ड, ऑक्सफोर्ड, ल्यूटन, ओल्डहम, रोचडेल, इन सब के मेयर मुसलमान, और पूरे यूके में सिर्फ 4 मिलियन मुसलमान हैं और 66 मिलियन यूके की पॉपुलेशन है जिसमें से सिर्फ 4 मिलियन मुसलमान हैं। लेकिन ये सारे मेयर, 3000 मस्जिदें हैं, 130 शरिया कोर्ट्स हैं यहाँ पे, 50 शरिया काउंसिल्स हैं, 78% मुसलमान औरतें काम नहीं करती, स्टेट से पैसा लेती हैं, बेनिफिट्स लेती हैं, फ्री रेसिडेंस मिली हुई है, सरकार उसका किराया देती है इनको जो घर मिले हुए हैं। 63% मुसलमान आदमी भी काम नहीं करते, वो भी फ्री सपोर्ट और बेनिफिट और फ्री रेसिडेंस ली हुई है। मुस्लिम फैमिलीज जो स्टेट की सपोर्ट पे रह रही हैं, एवरेज 6 से 8 बच्चे हैं उनके। इंग्लैंड की हर स्कूल में इस्लाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हलाल सर्टिफाइड फूड स्कूलों में खिलाया जाता है। 66 मिलियन पॉपुलेशन वाले यूके के सिर्फ 4 मिलियन मुसलमान इस मुल्क के फैसले करती है। तो अजीज दोस्तों, सिचुएशन ये है कि जब सादिक खान ने विक्ट्री स्पीच की तो शोर हुआ। अब ज़ाहिर शोर ही कर सकते हो तुम लोगों की अपनी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से ये मुसलमानों के हाथ में सब चीज़ें गई हैं। और ये जो एक्सट्रीम राइट के हैं, इनको मैं एक्सट्रीम राइट नहीं कहूँगा, मैं नेशनलिस्ट कहूँगा। ये अपने देश को वापस लेने की बात करते हैं। So much, hatred against him on social media, and many people believe and that it's justified. It is not justified. It is justified. A lot of people believe it's driven by US supporters. Well, go out there and speak to people in London. 60% of people didn't vote today, or didn't vote on Thursday. 60%. So he's been elected based on 40% of the electorate. You've got rising crime. You've got people being stabbed. You've got this war on motorists, people being charged all these different fees just to get behind the wheel. The turnout for Sadiq Khan is massive against the expectations even of the Labour Party, against the expectation even of Sadiq Khan. Yeah. And that's why places, it's elsewhere, people like Bradford or Burnley. No, but we are talking about London, not Bradford. Luton. Anywhere where the Islamic population gets above a certain point, you end up with an Islamic mayor. It's called the Islamic bloc vote. They talk about it in the media all the time. It's not something that I've invented. There are Hindu mayors, there are Sikh mayors, there are mayors from Jewish. Yeah, but I'm talking Christian, specifically in the Muslim, London different context. Yeah,
the Islamic population in London votes for one of their own. It's called the Islamic Bloc Vote. People can Google it all they want. Basically, they're voting for one of their own. He's given them Ramadan lights. He's given them Eid in Trafalgar Square. He's given Ramadan Mubarak Paul, all there is over Diwali, Nelson's there- column. But there is Diwali, there is Vaisakhi, there is Jewish festival, there are Christian Yeah, but festivals. Why not Muslim? how many Jews are there in London compared to Muslims? But no, but London is. अजीज़ दोस्तों, मामला हद से ज़्यादा ख़राब है। अब 7-8 महीने में इंग्लैंड में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और जो हालात नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ लंदन में नहीं जीता लेबर, पूरे यूके में लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है लेबर ने। और नज़र आ रहा है कि जनरल इलेक्शन जो 7-8 महीने में होंगे, जनवरी से पहले होने हैं। जनवरी 2025 डेडलाइन है, इससे पहले इलेक्शन होने हैं। लेबर का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। ये जो है ना, ये अगला प्राइम मिनिस्टर होगा हमारा यूके का। और हम समझते हैं, मैं अभी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था तो हम लोग बात कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि यार अच्छा है अब लेबर ही आ जाए, इसलिए कि जो इंग्लैंड में मामलात ख़राब चल रहे हैं वो अब कंजर्वेटिव सुधार तो सकती नहीं, तो ब्लेम भी इनके ऊपर आ रहा है। लेट लेबर कम, और जो सत्यानाश सवा सत्यानाश होना है लेबर के हाथों हो फिर। और जब लेबर की पॉलिसीज से और ज़्यादा मामलात ख़राब होंगे तो आखिरी चॉइस तो फिर यही होगी कि सिविल वॉर होगी, और सिविल वॉर बचाने के लिए या तो आर्मी को लाना होगा। तो वन वे और अदर लेबर ने आके चीज़ों को कुछ बेहतर तो करना नहीं है। अजीज़ दोस्तों, ये भाई साहब आपके जीते हैं इलेक्शन, घोड़े पे बैठ के वो कर रहे हैं। एक मौलवी की वीडियो में देख रहा था, मैं लगा नहीं सकता, उसमें वो खुल के जिहाद की सपोर्ट कर रहा है। और हैरत की बात है कि वो काउंसलर इलेक्ट हुआ है, खुल के जिहाद की बात कर रहा है। ये हालत है। स्कॉटलैंड का हाल लंदन से ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे अभी फर्स्ट मिनिस्टर जो था हमजा यूसुफ, उसको आखिरकार रिज़ाइन करना पड़ा। उसने $2.5 लाख पाउंड गज़ा भेज दिए सरकारी ख़जाने में से। बाप का माल है साला। और उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आने वाली थी तो उसको रिज़ाइन करना पड़ा। तो उसकी जगह जो वहाँ की लेबर पार्टी है स्कॉटलैंड की, उसका भी पाकिस्तानी हेड है, अनस सरवर चौधरी, सरवर चौधरी का बेटा है। सरवर चौधरी यहाँ पे पहला पाकिस्तानी एमपी था, और फिर वो बाद में इमरान खान के दौर में अपनी नेशनलिटी सरेंडर करके चला गया था। उसको इमरान खान ने गवर्नर पंजाब बनाया था, बाद में हटाया तो ये नून लीग में चला गया। अब ये नून लीग में है सरवर चौधरी। उसका बेटा अनस चौधरी ये स्कॉटलैंड में लेबर का हेड है, और अगले इलेक्शन में स्कॉटलैंड में अगर ये जीत जाता है तो ये स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर होगा। Every chief executive of every council and every government department, white. Every director of a department in Scotland, white. Every principal of a college or university in Scotland, white. Every head teacher in Scotland, white. Every chair of a public sector body in Scotland, white. Every High Court judge in Scotland, white. Every prison governor in Scotland, white. Every editor of a news organisation in Scotland, white. Why? वाइट आदमी ब्लैक के बारे में बात करे तो रेसिज्म, तो फिर वाइट के बारे में भी बात करना तो रेसिज्म है ना। रेसिज्म इज नॉट वन वे कि खाली वाइट ब्लैक के खिलाफ बात नहीं कर सकता। रेसिज्म इज अबाउट कलर, और जो कलर के बारे में बात करे उसके लिए यही है। अजीज़ दोस्तों, ली एंडरसन, ये इंग्लैंड का एक पॉलिटिशियन है, कंजर्वेटिव पार्टी का था। इसने जब कंजर्वेटिव पार्टी का था तो इसने कहा था कि सादिक खान है ना, उसने लंदन को लंदनिस्तान बना दिया है, और इस्लामोफोब
फोबिया को एक हथियार के तौर पे यूज़ किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इसको रिज़ाइन करना पड़ा और इसने फिर कंजर्वेटिव पार्टी छोड़ के अब वो एक्सट्रीम राइट में चला गया है। ये है ली एंडरसन। So Lee Anderson, a Tory MP, was removed from his position because of some comments that he made about Sadiq Khan, the mayor of London, and said that Sadiq Khan is controlled by the Islamists within his own party. And my question is, why did Lee Anderson get removed from his position for saying the truth? Because Sadiq Khan is controlled by the Islamists within his own party. He depends on the Islamic vote in London to stay in power, because according to the latest statistics, 20% of Londoners are Muslim. And I've actually met Sadiq Khan before, and all of his staff were Pakistani, and he was speaking Urdu to them. You're the mayor of London and you're speaking in another language to your staff. How is that acceptable? And would that be accepted if that was the other way around? And also, Sadiq Khan had a picture of a white family on his website saying, this doesn't represent a normal London family anymore. And I was thinking, if that was the other way around, there would be an outrage. So I do think Sadiq Khan is a racist himself, and he always calls other people racist and Islamophobic. But let me tell you something, Mr. Sadiq Khan. I'm a quarter Pakistani like yourself, and I come from a Muslim background. However, I do understand that there are certain parts of Islam that are deeply problematic and need to be called out. So when are you gonna stop using Islamophobia as an excuse and something that you hide behind? And when are you gonna grow a pair of balls? Because you're probably the worst mayor that London has. तो अजीज़ दोस्तों, यूके का तो हाल ही ख़राब है। लेकिन एक चीज़ की मैं करेक्शन चाहूँगा। मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने WION TV की एक रिपोर्ट लगाई थी 5 मिनट की, जिसमें WION TV ने ये बताया था कि द वर्स्ट प्लेस टू लिव इज़ UK। और फिर डिटेल में उसमें चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो कम से कम मैं इस बात पर एग्री नहीं करूँगा कि इंग्लैंड इज़ अ वर्स्ट प्लेस। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, कई अफ्रीकन कंट्रीज़, अब इंग्लैंड को वर्स्ट प्लेस तो नहीं कह सकते कम से कम। हाँ ठीक है, हालात ख़राब हैं। अब जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले कहीं से आ रहा था तो मैंने ऊबर की, तो ड्राइवर पाकिस्तानी था, फैसल। तो बैठे तो उसने मुझे कहा कि मेरे हाथ में ये होते हैं तो लोग समझते हैं कि मैं इंडियन हूँ। तो उसने कहा इंडियन, मैंने कहा कि मैंने उर्दू में कहा, मैंने कहा नहीं फैसल भाई पाकिस्तानी हूँ। तो अच्छा कराची से, मैंने कहा जी कराची से। बातचीत फिर होने लगी तो उस पर लंदन की बात निकली, तो वो भी रो रहा था। कहता है कि लंदन का हाल बहुत ख़राब है। कहता है मैं 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे 35 साल पहले आया था तो लंदन जन्नत था। वो इकोनॉमिकली बात कर रहा था, वरना तो वो भी मुसलमान था। तो लंदन ठीक है कंपेयरिंग टू बिफोर। हम भी 2012 में आए थे। मैं पहली बार लंदन में 1986 में आया, 85 में आया था, सऊदी अरब से घूमने फिरने आया था। और फिर बेल्जियम में आया हूँ 90 के बाद। उसके बाद तो रेगुलरली लंदन आना जाना होता है। ऐसा बुरा हाल लंदन का पहले कभी ना था। लेकिन आप स्टिल इसको वर्स्ट कंट्री नहीं कह सकते। इवन जो बड़े अमीर अरब देश हैं ना, वहाँ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, ये सब चीज़ें तो नहीं है ना। एटलीस्ट यहाँ पे मामला ठीक है। अगर एक मिसाल है कि मैं ये सब ना कर रहा होता, सच्चाई के सफ़र पे ना होता, तो मेरे लिए यहाँ पे क्या मसला था। मैं अगर एक टिपिकल पाकिस्तानी, टिपिकल मुसलमान की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा होता तो मेरे लिए तो जन्नत है। मैं भी यहाँ पे बेनिफिट ले रहा होता, टैक्स पेयर ना होता। अब यकीन मानेंगे मेरा 5,500 पाउंड का इनकम टैक्स आया है जो मुझे भरना है। तो वो पाकिस्तानी, वो मुसलमान अच्छे हैं ना, जो 6-6, 8-8 बच्चे करते हैं, जॉब नहीं करते, मियाँ बीवी दोनों जॉब नहीं करते, मज़े से रह रहे हैं। तो ये है अजीज़ दोस्तों, जॉब भी मैंने ढूंढनी शुरू कर दी है वापस, क्योंकि यूट्यूब का मामला ख़राब चल रहा है और ख़र्चे ज़ाहिर ज़्यादा होते हैं और जॉब करनी ज़रूरी है। तो मैं वापस अब जॉब ढूंढनी शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।